आज एक मुर्दा इंसान, इसको मुर्दा कहते हैं, एक जीवित इंसान को खींच कर ले जा रहा है। ये आपको डायबिटीज भी कर सकता है, हार्ट अटैक भी ला सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी ला सकता है, कैंसर भी कर सकता है। यू नो व्हाट विल बी द नंबर 1 किलर अमंग यूथ्स? सोशल मीडिया। यार राजस्थान की एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का था, उसके पिताजी को रात के 8 बजे थे, इसीलिए हम आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए इतनी गंभीरता पूर्वक आपको ये बात बताते हैं। मुंबई में एक बंदे थे, बहुत ही मल्टी मिलियनर थे, बहुत पैसे थे उनके पास। उन्होंने एक बंदे को हायर किया था, तुझे क्या करना है, चाटा मारना है मुझे। नाते नाते बाहर आते हैं बाथरूम में से, करीना कैसी हो तुम? यदि आपको उपवास करना ही है तो एक दिन फेसबुक का उपवास कर लो, एक दिन इंस्टाग्राम का उपवास कर लो, एक दिन लिंक्डइन का कर लो, एक दिन ट्विटर का कर लो। आप उहापो कीजिए। 1993 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 2 घंटे का, और आज भारत में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना आज, उसमें से 25% कारण, जब आप कोई भी चीज का स्टडी करते होंगे, जब आप खाते होंगे, आप सोते होंगे, इवन आप टॉयलेट में भी बैठे होंगे ना, कोई भी एक्टिविटी को आप करते हैं और एक बार अपने सोशल मीडिया फोन को देख लिया, अपने स्मार्टफोन को देख लिया, तो दोबारा आपका अटेंशन आने में, मेरी फोन की घंटी बजी, लेकिन रियल में फोन की घंटी बजी हुई होती। एक भैया अपने परिवार के साथ दिल्ली से आगरा जा रहे थे। अब उनको ऐसा लगा कि किसी का टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, हाथ से गाड़ी चला रहे थे और एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा। पहले हम भगवान का मंगलाचरण करेंगे, ठीक है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृदः कस्य स्विद्धनम् हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय धृष्टये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। First of all, it is a magnificent delectation being in front of you guys. I am very grateful to Omkar ji for inviting us here. It is indeed a magnificent delectation being here. The entire campus of the Vivekananda University, Bikond at Jaipur in Rajasthan. I'm very enthralled and very delighted to hear the activities being held out by the university here. And I was being notified that there are approximately 28,000 students studying here at the Vivekananda University, right? Faculties from all sectors, students from all sectors. It is very astounding and very glorifying to hear that. Today, I would like to deal into one of a very precarious topic that has not only fortified our life, but it has also to some extent ruined our lives. If we are not scrupulous, if we are not cognizant, if we are not well enthralled with the facts of the topic, I'm sure the topic can definitely and most assuredly create very deleterious effects in our lives.
All of you are college students in here. All of you will be pursuing in different sectors of the fields. All of you might be, some of you might be becoming IAS, IPS, some of you might be going in engineering, architects, some of you might be going to med schools, right? But no matter how many skills you might have in your life, no matter how much smart you might be in your life, no matter how much well educated you might be in your life, but if you are ruined by one addiction in your life, I can well assure you that no matter how much skills you might have, no matter how much smart you might be, no matter how much educated you might be, no matter how many resources you might possess in your life, but if you are addicted to one particular thing, that will definitely, most assuredly, it will create very venturesome effects in our life. And I'm talking about the addiction of social media. See, let me make it very explicit here that I'm not against social media. I am not against social media. I'm not against smartphones. I do not condemn smartphones. I'm not condemning social media. But definitely and most assuredly, I would like to tell you guys that if you guys are not cognizant about the effects of social media, if you guys are addicted to social media, it could create very deleterious effects in your life. See, you'll be very flabbergasted to hearken from teenagers to golden agers, juveniles to geriatrics, maids to lets, prenuptials to wedded, illiterates to erudites. It is very devastating to say that social media has surmounting effects on the lives of all these people. You will be flabbergasted to hearken the pessimistic sides of social media if I bring it to your side. You know, social media has created very devastating effects. Social media has comprehensively disrupted, dismantled, demolished, devastated, annihilated, pulverized, and shattered the lives of millions of people. Once again, let me repeat it. I'm not going against social media, but you guys need to be well cognizant about the effects of social media. Before initiating this topic, I would like to share a few of the statistics about social media. You will be flabbergasted to hearken every single day, we touch our mobile phones 2,600 times in a day. How many times? 2,600 times in a day we touch our mobile phones. Normal youths in India, they cannot live more than 2 minutes without phones. Normal college students in India, without 2 minutes, more than 2 minutes, they cannot live without their phones. On an average day, normal college students unlock their mobile phones 200 times. On a normal day, average college students unlock their mobile phones 200 times in a day. You will be flabbergasted to hearken that in India, in Bharat itself, 80% of the male college students are addicted to watching pornography. How many? 80% of the male college students in India are addicted to watching pornography. 65% of the female college students in India are addicted to watching pornography regularly. These are some few of the flabbergasting statistics I'm telling you to awaken your souls. I'm not sharing these statistics with you guys to frighten, to intimidate, to scare you guys. But the reason I'm disclosing it with you guys is to awaken our soul, because it is killing our soul, right? You'll be flabbergasted to hearken, India stands number 1 in the world today in watching pornographic sites. Before 3 years, America was number 1, Brazil was number 2, and India was number 3. But as of 2025, by the end of 2025, India stands number 1 in watching pornographic sites. That is the reason I'm bringing these facts towards you guys, so that you can awaken yourselves. It is the time for us to enlighten ourselves. See, people who have created social media, their intention is not that you get quality education. Their intention is not to enlighten yourself with education. Their intention is to hook yourself in social media. And in English, it is called the art of hooking. What is it called? Repeat it. What is it called? The art of hooking. You will be flabbergasted to hearken. Harari once asked Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, Mark, what is the intention behind creating Facebook? You know the reply that he gave?
Harari once asked Mark Zuckerberg, what is the intention behind creating Facebook? And you know what he said? I want people to spend maximum time on Facebook. He did not say that I want people to get quality education, I want people to share their real ideas, I want people to enlighten themselves. What did he say? I want people to spend their maximum time on social media platforms. You know, the CEO of Netflix, he was once asked, the CEO of Netflix, he was once asked, who is your biggest competitor? Netflix CEO was asked, who is your biggest competitor? You might be contemplating that he might have said Amazon Prime. He might have said some other OTT platforms. But you know what he said? My biggest competitor and my biggest enemy is sleep. What did he say? I want people not to sleep. I want people to watch movies on OTT series. I want people to watch movies on Netflix throughout the night. So these people, the creators of social media platforms, they are not concerned about your mental health. They are not concerned about your physical health. They are not concerned about your emotional intelligence. They are not concerned about your IQ. They are not concerned about your SQ. They are not concerned about your career. They are not concerned about your wealth, fame, prestige. They want to ruin your life. So it is your utmost duty to get the most out of social media. It is your utmost duty that you do not get addicted and you enlighten yourself with the optimistic sides of social media, right? All of you sitting in here are youths. There are thousands of students studying here, right? Almost 25,000 students. I want none of you to get addicted to social media addiction. And remember, if you get addicted to this addiction, no one will be able to save you from the deleterious, from the venturesome effects of social media. You know, I'll just share a few examples and then I'll get into the main topic. There was one guy in New Delhi. He was watching his reels on social media. You guys can contemplate what I'm saying, right? You guys want me to come back to Hindi or? Okay, no problem. दिल्ली में एक बंदा था, आप जैसे ही एक स्टूडेंट था, and he was watching reels on social media. क्या कर रहा था वो? सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था. अब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वो अपना बेसुध बोल चुका था. वो क्या कर रहा है सोशल मीडिया पर? He lost his consciousness. सोशल मीडिया पर रील्स देखता जा रहा था. उसको यूरिन जाना था, लेकिन वो इग्नोर करता था. क्या करता था? इग्नोर करता था. बिकॉज like I said, social media creators have created the art of hooking, right? तो वो रील्स देखता जा रहा था. आप कंटेम्पलेट नहीं कर पाएंगे. Within 3 to 4 hours, his urinary bladder bombarded. उसका जो यूरिनरी ब्लैडर था ना, वो फट गया. इतना वो सोशल मीडिया रील्स का एडिक्टर हो चुका था. 3-4 घंटे तक लगातार रील्स पर लीक्स देखता ही जा रहा था. उसको 3-4 घंटे से पहले मैसेज आ रहे थे कि उसको यूरिन जाना चाहिए, लेकिन रील्स देखने में इतना वो मशरूफ हो चुका था, इतना बिजी हो गया था, इतना हेक्टिक हो चुका था कि उसका यूरिनरी ब्लैडर फट गया और वो बंदा मर गया. आप वहां कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, कितना खतरनाक ये एडिक्शन है. हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसा होता है ना. हमें कभी कभार पढ़ना होता है, फैमिली के साथ समय देना होता है, लेकिन हम क्या करते रहते हैं? पूरे दिन क्या करते हैं? सोशल मीडिया रील्स देखते ही जा रहे हैं. दूसरी में आई एम शेयरिंग ऑल द बोनाफाइड जेन्युइन इंसिडेंट्स विद यू गाइस. देयर वाज वन अनदर गाय इन बैंगलोर. वो क्या कर रहे थे? रात को रील्स देख रहे थे, ओटीटी सीरीज पर मूवीज देख रहे थे. ही वाज अप्रॉक्सिमेटली 45 years old और मूवीज देखते रहे थे. नेटफ्लिक्स पर, अमेजॉन प्राइम पर नई नई मूवीज का लुत्फ उठाते थे. हुआ क्या? उनको चेस्ट में पेन होने लगा. क्या हुआ? यू गाइस कैन कंटेम्पलेट व्हाट यू आर सेइंग. आई नीड सम ऑप्टिमिस्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस. समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? उनको छाती में दर्द होने लगा, लेकिन मूवीज देखने में इतने ललीन हो चुके थे. मूवी देखते जा रहे थे, छाती में दर्द और भी सतेज होने लगा. 2-3 घंटे से शायद उनको दर्द हो रहा था. यकायक वहां पर ही ढल गए वो.
इमरजेंसी में उनकी वाइफ उनको अस्पताल लेके जा रही है, अस्पताल में ले जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ही सफरिंग फ्रॉम सीवियर हार्ट अटैक, उनको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। बाईपास सर्जरी करा देते हैं, फिर धीरे धीरे आईसीयू में से नॉर्मल वार्ड में लाते हैं। फिर डॉक्टर्स उनको पूछते हैं कि ये जो हार्ट अटैक आपको आया, वी कैन से कि आपको इसका दर्द कम से कम 3 घंटे पहले शुरू हो गया होगा। कितने घंटे पहले? 3 घंटे, ऑन एवरेज 3 घंटे पहले। वो पेशेंट कहते हैं हाँ मुझे अंदाजन 3-4 घंटे से पहले से दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर्स पूछ रहे थे कि आपने अस्पताल में जाने का कोई सोचा नहीं था? आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना देना चाहिए? पेन तो सीवियर था। डॉक्टर ने पूछा कि आपको एसिडिटी का दर्द लग रहा था? नहीं, वो पेशेंट कह रहे नहीं, दर्द तो बहुत सीवियर हो रहा था। और आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, वो जो पेशेंट था ना वो भी डॉक्टर था। क्या था? तो उसको मालूम पड़ गया था कि ये सभी सिम्टम्स शायद हार्ट अटैक के भी हो सकते हैं, क्योंकि पसीना छूट रहा था, छाती में दर्द हो रहा था, पीछे प्रॉब्लम हो रहा था। सो ऑल दिस सिम्टम्स वर रेजेंबलिंग ऑफ एन हार्ट अटैक। अब वो जो डॉक्टर था, जो पेशेंट था, जो रात को रील्स मूवीज देख रहा था, वो भी डॉक्टर था, उसको मालूम था कि दिस आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। फिर भी आप कंटेम्पलेट तो करें, वो मूवीज देखने में इतना लेलीन हो चुका था कि उसने अपनी हेल्थ की भी फिक्र न करी और हार्ट अटैक को आना पसंद कर रहा है। जिसने उनकी सर्जरीज की वो डॉक्टर कहता है यार तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तुझे अपनी जान भी प्यारी नहीं है, इतना एडिक्टेड टू सोशल मीडिया का हो चुका है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता? हम हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों को दरकिनार करते हैं। हम हमारे फैमिली को कभी कभार दरकिनार करते हैं, हम हमारे एजुकेशन को दरकिनार करते हैं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दरकिनार करते हैं, हमारे फैमिली वैल्यूज को, हमारे एजुकेशन को, हमारे स्किल्स को, हमारे करियर्स को, हमारी एग्जाम्स को हम कभी कभार साइडलाइन कर देते हैं सिर्फ इसकी बदौलत। आज एक मुर्दा जीवित इंसान को खींच कर ले जा रहा है। क्या? आज एक मुर्दा इंसान, इसको मुर्दा कहते हैं, एक जीवित इंसान को खींच कर ले जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे प्रवचन के दौरान भी कई ऐसे हमारे मित्र होंगे जो शायद सोशल मीडिया ही देखते होंगे। यदि आप उसमें से एक हो तो कृपया अपने आप को सावधान रखिए 1 घंटे के लिए, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गौर से सुनना मेरी एक एक बात को, आज आपकी जमीर को जगाने के लिए हम आए। एक एक बात को आप गौर से सुनना, ठीक है? आज मैं आपको ऐसी बातें करने के लिए नहीं आया हार्ड वर्क करो, ये करो, ये सब बातें आप लोगों सोशल मीडिया पर बहुत सुनते हो। आज हम आपको सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचाने के लिए आए, ठीक है ना? तो WHO की रिसर्च के आधार पर बाय 2045, अभी कौन सी साल चल रही है? 2026, विद इन 20 years, you know what will be the number 1 killer among youths? सोशल मीडिया। आप कहेंगे सोशल मीडिया की बदौलत लोग कैसे मर पाएंगे? हम आपको इसी प्रवचन में आगे एक एक करके आपको बताएंगे सोशल मीडिया आपके हेल्थ को कैसे तबाह करता है, आपकी इमोशनल हेल्थ को कैसे खत्म करता है, आपके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खिलवाड़ करता है। ये WHO का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? बाय 2045 स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया एडिक्शन विल बी द नंबर 1 किलर अमॉन्ग यूथ्स इन द एंटायर वर्ल्ड। हार्ट अटैक से जो लोग मरेंगे, कैंसर से जो लोग मरेंगे, अन्य बीमारियों से, अन्य मर्जों से जितने लोग मरेंगे, उससे ज्यादा किससे मरेंगे? और ये आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, ये आपको डायबिटीज भी कर सकता है, हार्ट अटैक भी ला सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी ला सकता है, कैंसर भी कर सकता है। एक एक पॉइंट पर हम आपके साथ साझा करेंगे। इसीलिए हम आपको कहते हैं, हम शुरुआत में आपको सोशल मीडिया की बदौलत कौन सी डिजीजेस होती है ना, वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। वैसे तो कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन यहां पर हम आपके साथ 7 या 8 ऐसी बीमारियां आपके साथ साझा करेंगे। सुनने के लिए तैयार है आप? हैं? सबसे इसमें आप में से कोई बताना चाहता है सोशल मीडिया की बदौलत होने वाली एक बीमारी? इफ यू कैन प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज लेट मी नो। कौन बोलना चाहता है? बोलिए। बहुत बढ़िया। मैं आपको यहां पर 8 ऐसी बीमारियों का नाम दूंगा जो सोशल मीडिया एडिक्शन की बदौलत, इसको डिजिटल डिजीजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिटल डिजीजेस।
सबसे पहले है SMAD यानी कि सोशल मीडिया एडिक्शन डिसऑर्डर। क्या नाम है इस बीमारी का? सोशल मीडिया एडिक्शन डिसऑर्डर। इसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप अत्यंत बारीकी और गौर से सुनना। हमारे एक एक शब्द को, एक एक लफ्ज को, एक एक अल्फाज को आप अत्यंत बारीकी से सुनना। सबसे पहले कौन सी बीमारी हमने आपको बताई? सोशल मीडिया एडिक्शन डिसऑर्डर। यह राजस्थान की ही एक बात मैं आपको बताता हूं। सिटी का नाम, बंदे का नाम नहीं बोलूंगा। एक लड़का था, उसके पिताजी को रात के 8 बजे थे और छाती में दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था? छाती में दर्द हो रहा था। तो उसकी माता जी, जो लड़का था, उनके पिताजी थे और उनकी माता जी भी बगल में बैठी थी। तो इस लड़के की माता जी, लड़के के पिताजी को जो दर्द हो रहा था ना छाती में, उनको देखकर ये माता जी कहती है कि तुम्हारे पिताजी को अस्पताल ले जाओ। वो पिछले 1 घंटे से कह रहे हैं कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, लेकिन वो लड़का रील्स देखने में क्या था? अपने आप को रील्स देखने में उसने मशरूफ कर दिया था। अपनी माता जी के शब्दों को इग्नोर करता है। पिताजी कहते मुझे दर्द बहुत हो रहा है, मेरे सामने कोई ध्यान दो। पिताजी और भी चिल्लाने लगे कि भैया डॉक्टर को बुलाओ या फिर मुझे अस्पताल ले जाओ। लड़का रील्स देखने में ही मशगूल था, मशगूल हो चुका था, इतना रील्स देखने में मशगूल हो चुका था, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। 1 घंटे के बाद उनके पिताजी ऑन द स्पॉट वहां पर मर जाते हैं। क्या होता है? 1 घंटे में क्या होता है? उनके पिताजी वहां पर मर जाते हैं। उनकी माताजी रोने लगती है, बिलखने लगती है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर भी वो लड़का अपने पिताजी का शव वहां पर पड़ा हुआ था, फिर भी पिताजी पर ध्यान नहीं देता और रील्स देखता ही जा रहा है। ये सब रियल इंसिडेंट्स में आपके साथ साझा करता हूं। रील्स देखता जा रहा है, रील्स देखता है। 1 घंटे के बाद इस लड़के का जो बड़ा भाई था ना, वो वहां पर आ रहा है और वो देखता है उनके पिताजी वहां पर मरे हुए पड़े हैं, माताजी रो रही थी, बिलख रही थी, और ये बंदा फिर भी रील्स ही देख रहा था। क्या देख रहा था? रील्स ही देख रहा था। उसके बड़ा भाई आकर उसको जोर से 3-4 चाटा मार देता है और कहता है कि हमारे पिताजी की ये दुर्दशा हुई और फिर भी तू रील्स देख रहा है। आप ऊहापोह कीजिए कितनी हद तक ये बीमारी वहां पहुंच चुकी है। फिर इस लड़के को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम SMAD, सोशल मीडिया एडिक्शन डिसऑर्डर। कौन सी बीमारी हो गई थी उसको? सोशल मीडिया एडिक्शन डिसऑर्डर, यानी कि वो फोन के बिना रह ही नहीं सकता। अपने पिताजी को मरते हुए देख सकता है, अपनी माताजी को रोते हुए देख सकता है। ऐसे आज के यूथ्स पैदा होता है। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं, हम आपको उसमें से वो बनाना नहीं चाहते। आपको अपने गोल पर फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है, अपने जीवन पर फोकस करना है। इसीलिए आपको सोशल मीडिया का एडिक्टेड नहीं होना। दूसरी बीमारी हम आपके साथ साझा करते हैं जिसका नाम है फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। क्या नाम है बीमारी का? आप सब जोर से बोलिए। फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर, इसको इंग्लिश में FAD भी कहा जाता है। इस पर भी हम आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाते हैं। मुंबई में एक बंदे थे, बहुत ही मल्टी मिलियनर थे, बहुत पैसे थे उनके पास, कई कंपनियां थी उनके पास, कई दौलत शोहरत प्रसिद्धियां थी, लेकिन फेसबुक के वो सीवियरली एडिक्टेड हो चुके थे। क्या हुआ था उनको? क्या हुआ था? फेसबुक का एडिक्शन उनको हो चुका था। कितनी भयंकर ये बीमारी है ना? आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। उनकी बीमारी की बदौलत उन्होंने एक बंदे को हायर किया था। क्या किया था? उन्होंने एक बंदे को हायर किया था अपना फेसबुक एडिक्शन छुड़ाने के लिए। अपने फेसबुक के एडिक्शन को छुड़ाने के लिए उन्होंने एक बंदे को हायर किया था। तुझे क्या करना है, जब भी मैं ऑफिस आवर्स में फेसबुक खोलूं ना, तो तुझे एक चाटा मारना है। मुझे क्या करना है? और उसके लिए उसको महीने का 1 लाख रुपया दे रहा था। कितने? सिर्फ इसी शर्त पर कि तुझे मेरे फेसबुक का एडिक्शन छुड़वाना है। महीने का 1 लाख रुपया उनको दे रहा था फेसबुक का एडिक्शन छुड़वाने के लिए। तो जब भी ये बंदा अपने ऑफिस आवर्स में फेसबुक को खोलता है, तो ये बंदा आकर उसको जोर से चाटा मारता है।
आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर उसका एडिक्शन छूट गया। क्यों? क्योंकि उसको उस एडिक्शन को छोड़ना था। क्या करना था? क्या करना था? उस एडिक्शन को छोड़ना था। हमारे जीवन में क्या हम फेसबुक को दिन में 3 या 4 बार से ज्यादा नहीं खोलते? आप में से कितने लोग फेसबुक को दिन में 3 से ज्यादा बार खोलते हो? रेज योर हैंड प्लीज। हाथ उठाइए, अपना उठाइए। कितने लोग हैं जो दिन में फेसबुक को 3 या ज्यादा बार उपयोग करते हो? बहुत लोग है ना। तो यू आर सफरिंग फ्रॉम फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। समझ रहे हैं हमारी बात को? यदि आप भी दिन में 3 या 4 बार से ज्यादा फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। तीसरी हम आपको बीमारी पर ले जाते हैं जिसका नाम है टेक्स्टोफ्रेनिया। क्या नाम है? टेक्स्टोफ्रेनिया। फिर से बोलिए तो। अब टेक्स्टोफ्रेनिया में होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी फोन की घंटी बजी, लेकिन फोन आया होता नहीं है। क्या लगता है आपको? मेरी फोन की घंटी बजी, लेकिन रियल में फोन की घंटी बजी हुई होती नहीं, क्योंकि आप उसके इतने एडिक्टर हो चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी घंटी बजी होगी, मेरी घंटी बजी होगी। मैं एक आपको दूसरी रियल इंसिडेंट सुनाता हूं। अमेरिका में एक भैया थे, वो बाथरूम में स्नान कर रहे थे और उनको ऐसा लगा कि मेरी फोन की घंटी बज रही है। क्या लगा? फोन की घंटी बज रही है। तो वो नाते नाते भी एक भी मिस्ड कॉल्स नहीं देखना चाहते थे। नाते नाते बाहर आते बाथरूम में से और देखा तो किसी का फोन ही नहीं था। फिर बाथरूम में नहाने के लिए वापस जाते हैं। जैसे ही वापस जाते हैं वो फिसल जाते हैं और वहां पर ही ब्रेन हैमरेज हो जाता है और मर जाते हैं। क्या होता है? गिर जाते हैं और ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वहां पर डह जाते हैं, मर जाते हैं। इसको कहते हैं फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। क्या कहते हैं? फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। आपको लगता है कि मेरी फोन की घंटी बजी है, लेकिन रियल में आपका फोन आया हुआ ही नहीं होता। एक दूसरे बंदे थे, वो रात को सो रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि मेरी फोन की घंटी बज रही है। तो उन्होंने नींद में ही अपना फोन उठाकर किसी से बात करने लगे। नींद में ही किसी के साथ बात करने लगे। करीना कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? अब उनको मालूम नहीं था उनकी धर्मपत्नी बगल में ही सो रही थी। तो उनकी धर्मपत्नी की नींद उठ गई और वो सोचती है कि करीना नाम की महिला किसके साथ बातचीत कर रही है? हमारे पतिदेव। तो फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उनके पतिदेव का कोई करीना नाम की महिला के साथ अफेयर चल रहा था और फिर उनका डिवोर्स हो चुका। तो इसको कहते हैं क्या? फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फोन की घंटी बजी है, लेकिन वास्तव में फोन आया हुआ होता नहीं। दूसरी बीमारी हम आपको बताते हैं जिसको कहते हैं टेक्स्टोफ्रेनिया। क्या? ये सभी रियल इंसिडेंट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। इसको कहते हैं टेक्स्टोफ्रेनिया, यानी कि आपको ऐसा लगा कि मेरे फोन में किसी का मैसेज आया, किसी का टेक्स्ट मैसेज आया, किसी का एसएमएस मैसेज आया, लेकिन वाकई में किसी का मैसेज आया हुआ होता नहीं है। ये भी हम आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाते हैं। एक भैया अपने परिवार के साथ दिल्ली से आगरा जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? दिल्ली से आगरा जा रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि ये भैया फोन के इतने एडिक्टेड हो चुके थे कि फोन गाड़ी चलाते चलाते भी यदि उनको लगा कि किसी का टेक्स्ट मैसेज आ रहा है तो वो तुरंत देख लेते थे। अब उनको ऐसा लगा कि किसी का टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, उन्होंने एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे और एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा। देखने गए ऐसा किसका टेक्स्ट मैसेज आया और गाड़ी सामने पुल के साथ कलाइड हो चुकी और ऑन द स्पॉट पीछे बैठी हुई उनकी पत्नी मर गई, उनका 10 साल का बेटा मर गया और ये बंदा खुद मर गया और उनकी 6 साल की बच्ची बची हुई। क्या हुआ? वो खुद मर गया, उसकी धर्मपत्नी मर गई, उसका 10 साल का बेटा मर गया और 6 साल की बच्ची गाड़ी में बैठी थी। किसकी बदौलत? इसकी बदौलत। उसके प्रारब्ध में आज मृत्यु नहीं लिखी थी क्या? लेकिन सिर्फ उसको ऐसा लगा कि मेरा टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, वाकई में टेक्स्ट मैसेज आया नहीं था। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज देखने के लिए वो अपने
एक हाथ से मोबाइल फोन को उठाता है, एक हाथ से अपनी गाड़ी चलाता है और गाड़ी सामने कलाइड हो जाती है और ऑन द स्पॉट सभी लोग मर जाते हैं। इसीलिए हम आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए इतनी गंभीरता पूर्वक आपको ये बात बताते हैं। आपको शायद इसकी अहमियत लगे या ना लगे, आपको इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस लगे या ना लगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अपने आप को इसके एडिक्शन से बचाना है आपको, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन कि विद इन इंडिया इटसेल्फ, भारत में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, आज जितने भी कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, उसमें से 25% कारण स्मार्टफोन्स की बदौलत है, मोबाइल फोन्स की बदौलत है। क्योंकि लोग गाड़ी चलाते चलाते, अरे आज तो बाइक चलाते चलाते भी लोग स्मार्टफोन्स के बिना रह नहीं सकते। भारत में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें से 25% कारण किसका है? मोबाइल फोन्स का है, स्मार्टफोन्स का है। और उसमें भी एक्सीडेंट्स में जितने भी लोग मर रहे हैं ना, उसमें से 26% कारण स्मार्टफोन्स का ही है। इसीलिए हम आपकी चेतना को जगाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये बात अत्यंत गंभीरता पूर्वक आपके साथ साझा करते हैं। दूसरी बीमारी है नोमोफोबिया। क्या नाम है उसका? नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोन फियर। माने कि जब कोई आपसे मोबाइल फोन छीन लेता है ना, तब आप उस पर बौखला जाते हैं, आप उस पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा, आपके टीचर्स, आपके फैकल्टीज या आपके पेरेंट्स जब आपको आपका स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से रोकते हैं ना, तो हमारा गुस्सा उन पर चला जाता है। होता है या नहीं? एक रियल दूसरी इंसिडेंट में आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखिए, अमेरिका की ये इंसिडेंट है। एक लड़का था 16 साल का, तो उसके पिताजी ने, वो ज्यादा मोबाइल फोन का एडिक्टेड हो चुका था, तो उसके हाथों में से मोबाइल फोन छीन लिया और कहा, एक दिन के लिए तुझे तेरा मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। क्या कहा? एक दिन के लिए तुझे तेरा मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। उस 16 साल के लड़के को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उसने अपने पिता की कत्ल करने का सोच लिया। क्या सोचा उसने? अब मेरी बात गौर से सुनना, उसके पास गन थी, लेकिन फिर भी गन से अपने पिताजी को नहीं मारा। उसने नाइफ के जरिए क्या किया? क्या किया? नाइफ के जरिए अपने पिताजी की कत्ल की, और वो भी 33 टाइम्स नाइफ उनके शरीर के अंदर घोंस दिया। कितनी बार? 33 बार अपने पिताजी की हत्या उसने नाइफ से की। और फिर उसकी माताजी उसको देख लेती है, तो माताजी को भी वो गन से मार डालता है। उसका बड़ा भाई उसको देख लेता है, बड़ा भाई को भी गन शॉट से मार डालता है। पुलिस आती है, पुलिस पूछता है ये सब कैसे हुआ, तो वो लड़का क्या कहता है जानते हो? वो कहता है हमारे घर पर चोर आ गए थे। अब अमेरिका की पुलिस थोड़ी बेवकूफ है, सब सीसी कैमरास जांच लिए, फिर मालूम पड़ा, फिर इसको कस्टडी में लेते और पूछते हैं कि तूने अपने ही पिताजी की हत्या क्यों की, अपनी ही माताजी की हत्या क्यों की, अपने ही सगे भाई की हत्या क्यों की? फिर वो बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि एक दिन के लिए तुझे तेरा मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, तो मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैं इतना बौखला गया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मेरे ही दुश्मन हैं। मैंने अपने ही पिताजी को चाकू से भून डाला, अपनी ही माताजी और अपने ही बड़े भाई को गोलियों से भून डाला। आप उहापो तो कीजिए, आज की यूथ्स कौन सी बर्बादी की कगार पर जा रहे हैं। ये सब हम आपके साथ रियल इंसिडेंट साझा करते हैं ताकि आपकी आत्मा जगे, हमारा कॉन्शियसनेस को हमें अपलिफ्ट करना है। आप उहापो तो कीजिए, कितना गुस्सा उसको आया होगा। इसको क्या कहते हैं? नोमोफोबिया। मोबाइल फोन यदि कोई आपसे छीन ले तो आपको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, तो आप कभी कभार उसको मारने तक का सोच लेते हैं। और एक आखिरी बीमारी के विषय में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है सेक्सटॉर्शन। क्या नाम है? सेक्सटॉर्शन। ये बीमारी ऐसी है, आजकल आप देखेंगे कई यूथ्स लोग कभी कभार सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ चैट करना शुरू कर देते। अब उनको मालूम भी नहीं होता कि सामने वाला इंसान जिसके साथ वो चैट करते हैं वो पुरुष हो, स्त्री है, महिला है, क्या है। अब आपको
किसी की भी बहुत ही हैंडसम में से हैंडसम ब्यूटीफुल तस्वीर किसी की देखनी है तो आप उसकी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर को देख लेना, और किसी की भी वही इंसान की अगली में से अगली बद सुंदर में से बद सुंदर तस्वीर देखनी है तो आप उसके आधार कार्ड को देख लो, आप उसी इंसान के आधार कार्ड को देख लो और उसी इंसान के फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर को देख लेना, आपको लगेगा क्या है वही इंसान है। तो आजकल लोग इतने फिल्टर्स लगा लगा कर अपनी रियल आइडेंटिटी इतनी छिपा देते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, तो एक 15 साल का लड़का था, अब वो किसी महिला के साथ चैटिंग करना शुरू कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को पहले मित्र बनाया, मित्र बनाने के साथ फिर धीरे धीरे उनका फ्रेंडशिप में तब्दील हुआ, फ्लर्ट करना लगे। फिर ये लड़की एक दिन उसको कहती है, ये रियल इंसिडेंट में आपको कहता हूं ताकि आपकी आत्मा जगे। फिर वो लड़की उसको कहती है कि देखिए मैं अब तू वीडियो कॉल शुरू कर, मैं धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारती हूँ, फिर तू अपना कपड़ा भी उतारने लग। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और फिर आधे घंटे के बाद, रियल इंसिडेंट है आप सुनना, आधे घंटे के बाद उस लड़के के स्मार्टफोन पर एक मैसेज आता है कि यदि तुझे अपनी प्रेस्टीज बचाकर रखनी है तो आधे घंटे के अंदर 1 लाख रुपया इस अकाउंट पर ट्रांसफर करवा देना, वरना तेरी सभी न्यूड पिक्चर्स और न्यूड वीडियोस सोशल मीडिया पर, तेरे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो जाएगी और तेरे ही पिताजी और माताजी के स्मार्टफोन पर भी ये वीडियो चली जाएगी। अब ये 15 साल का लड़का बहुत गमगीन हो चुका, ये कैसे हो गया, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये तो मेरी मित्र थी, इसको तो मैंने मित्र बनाया था, ये कैसे हो गया। 6 महीने तक उनका अफेयर चला, वही लड़की ने उसको धोखा दिया, उसको अपने मित्र के पास से किसी भी तरीके से 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ा और उनको देता है। लड़के ने सोचा ये मामला यहां पर खत्म हो गया होगा, मामला यहां पर खत्म नहीं होता। 1 हफ्ते के बाद दोबारा उस लड़के पर मैसेज आता है कि 1 हफ्ते के अंदर इस अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपया डाल देना, वरना तेरी सभी सोशल मीडिया की जो जितनी भी ये न्यूड वीडियोस और फोटोज थी ना, सभी वायरल हो जाएगी। ये लड़का और टेंशन और डिप्रेशन में आ गया, मैंने तो 1 लाख रुपये का बंदोबस्त किया था, अब ये तो 5 लाख मांग रहा है, कहां से 5 लाख लाऊं। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, वो एक जगह पर पैसे चुराकर 5 लाख रुपया का भुगतान करता है। पैसा कहां से लाता है? चोरी करके लाता है और उस 5 लाख रुपये का भुगतान करता है। सोचा यहां पर मामला खत्म हो गया होगा। 1 महीने के बाद दोबारा उसी मोबाइल फोन पर वही वीडियोस आते और कहा जाता है कि यदि तूने 10 लाख रुपये की भरपाई नहीं की 1 महीने के अंदर तो ये सभी वीडियोस वायरल हो जाएगी। लड़का फिर उदास, गमगीन, डिप्रेस्ड हो चुका, लेकिन अब वो 10 लाख रुपया लाए कहां से? 5 लाख रुपया तो चुरा कर लाया था, अब 10 लाख रुपये का बंदोबस्त वो कहां से करे? आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। वो एक नोट लिखता है जिसमें अपने सभी करतूत को लिखता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। वो नोट में अपने माताजी और पिताजी के लिए लिखता है और फिर सुसाइड करके मर जाता है। क्या करता है? सुसाइड करके मर जाता है। फिर उसकी जब सुसाइड नोट पढ़ी जाती है तब उसमें उसने ये पूरी इंसिडेंट एलाबरेट करके लिखी हुई थी कि मैं कैसे इस चक्कर में फंस गया। जब मेरी पहली बार मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी का मैसेज आया, बहुत ही मीठी मीठी भाषा में लिखा, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, आई लव यू, ऐसी मीठी मीठी भाषा में ये युवा फंस गया। धीरे धीरे फ्रेंडशिप में से फ्लर्टिंग शुरू हो गया। उन्हें उस लड़की ने तो सोचा था कि इस दुनिया की सबसे बेशकीमती दौलत मेरे पास आ गई है, फिर मालूम पड़ा कि वही दौलत ने उसके प्राण ले लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो। माई पॉइंट इज नॉट दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू गाइस, लेट मी रिपीट इट, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू गाइस, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटिमिडेट यू गाइस, लेकिन सतर्क रहना, विजिलेंट रहना बहुत ही अहम है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे ये लड़का आत्महत्या करके मर गया, वैसे ही आज भारत में ऐसे कई यूथ्स लोग हैं जो इसकी बदौलत आत्महत्या करने की नौबत आती है उनके जीवन में।
दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू अवेकन यू गाइस। समझ रहे ना आप हमारी बात को? इसीलिए सोशल मीडिया के एडिक्शन से अपने आप को बचा कर रखना है। क्या करना है? बचा के रखना है। आपके पास चाहे कितनी भी स्किल हो, कितने भी आप चाहे स्मार्ट हो, कितने भी आपके पास रिसोर्सेस हो, कितनी भी एनर्जी आपके पास हो, लेकिन यदि ये एडिक्शन आपके जीवन के अंदर आ गया, आप खत्म हो जाओगे। मैं दूसरा रिसर्च आपके साथ सुनाना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का ये रिसर्च है। गौर से सुनना। जब कोई भी इंसान पढ़ता है, जब कोई भी इंसान किसी भी एक्टिविटी को करता है ना, तब वो उसी एक्टिविटी के दौरान यदि एक बार भी अपने स्मार्टफोन को देखता है ना, क्या करता है? देखता है ना, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे उसको दूसरी बार अटेंशन आने में कितना समय लग जाता है। आप बोलिए, अंदाजा लगाइए। आप कौन बोलेगा? है? बोलो बोलो, सब बोलो। यहां से कोई बोलो, बोलो बोलो, कोई तो बोलेगा। यहां से बोलो, कितना समय लगता है? आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का ये रिसर्च है। जब कोई भी इंसान कोई भी एक्टिविटी को करता है और बीच में एक बार अपने सोशल मीडिया फोन को देख लेता है ना, अपने स्मार्टफोन को देख लेता है ना, दूसरी बार उसका अटेंशन आने में 22 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। यानी कि जब आप पढ़ते होंगे, जब आप कोई भी चीज का स्टडी करते होंगे, जब आप खाते होंगे, आप सोते होंगे, इवन आप टॉयलेट में भी बैठे होंगे ना, कोई भी एक्टिविटी को आप करते हैं और एक बार अपने सोशल मीडिया फोन को देख लिया, अपने स्मार्टफोन को देख लिया, तो दोबारा आपका अटेंशन आने में 22 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। अब आप कैसे पढ़ पाएंगे? आज के यूथ करते क्या है? पढ़ते पढ़ते बगल में स्मार्टफोन्स देखते हैं। अब उसमें भी यदि आपने रील देख ली तो उसकी तो बात ही क्या करना। मैं किसकी बात करता हूं? आप कोई भी एक्टिविटी करते हो और एक बार ये देख लिया ना, क्या देख लिया ना, तब आप दूसरा अटेंशन आने में आपका 22 मिनट और 15 सेकंड लग जाते हैं। इतना खतरनाक ये एडिक्शन है। सन 1992 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पेन था 2 घंटे का। कितना? यानी कि जब आप कोई इंसान कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो 2 घंटे तक लगातार उस एक्टिविटी को कर पाता है। क्या करता है? क्या करता है? 2 घंटे तक वो देख सकता था। 1995 में वो 1.5 घंटे का समय हो चुका। कितने का समय हो चुका? 1.5 घंटे का वो समय हो गया 1995 में। 1998 में वो समय हो गया 1 घंटे का। कितना समय हो गया? अब हर दिन रेड्यूस ही होता जा रहा है। 1999 में कितना हो गया? 1 घंटे का हो गया। 2003 में वो समय हो चुका 55 मिनट्स का। कितना हुआ? मेरी एक एक बात गौर से सुना। 2010 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हो चुका 50 मिनट का। कितना? अब जब से स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया शुरू हुआ 2016 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 45 मिनट्स। यानी कि आप स्टडी करते हो तो आप 45 मिनट तक किसी भी समय पर फोकस कर सकते हो। 2020 में, कोरोना से पहले 2019 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 35 मिनट्स। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे 2022 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 5 मिनट का। कितना? 2 साल के अंदर नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन कितना हो गया? 5 मिनट का। यानी कि वो इंसान 5 मिनट से ज्यादा किसी चीज पर फोकस। 2025 के अंत में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हो चुका 90 सेकेंड्स का। कितना? कितने सेकेंड्स का हो गया? 90 सेकेंड्स का हो चुका। आप उहापो कीजिए, 1993 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन था 2 घंटे का। कितना? और आज 2025 के अंत में 90 सेकेंड। अब 2026 अभी चल रहा है। 2026 के अंत में आप देखना नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन कुछ सेकेंड्स तक ही बच पाएगा। और इसका प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस? सोशल मीडिया एडिक्शन।
इसीलिए मैं कहता हूं हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन आपकी आत्मा को जगाना चाहते हैं। आप सभी यहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हो, आप सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हो। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं, यदि आप अपने IQ को बढ़ाना चाहते हो, यदि आप अपने EQ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने SQ को बढ़ाना चाहते हो, अपनी मेमोरी को सतेज करना चाहते हो, अपने कंसंट्रेशन पावर को सतेज करना चाहते हो, तो आज से ही आपको अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है उसका ज्ञान लेना चाहिए। यदि आपको उपवास करना ही है तो एक दिन फेसबुक का उपवास कर लो, एक दिन इंस्टाग्राम का उपवास कर लो, एक दिन लिंक्डइन का कर लो, एक दिन ट्विटर का कर लो, है। गारंटी के साथ कहता हूं कि भगवान आप पर इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो आपको साक्षात दर्शन दे देंगे। लेकिन आज के युग में एक दिन के उपवास की तो बात दूर रखी, 1 मिनट का भी उपवास नहीं रख सकता कोई सोशल मीडिया के बिना। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे आप सभी को कि आप सभी के अंदर असीम प्रसंभावनाएं हैं। यू ऑल ऑफ यू possess immense potential within you guys. All of you have very colossal, very Herculean power within you guys. Now is the time to reawaken yourself. प्रणाम, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।